नमस्कार, मैं सुनील एमएच हृदय से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल पारिक प्रेजेंटेशन के दांडेली दैनिक समाचार पर। आज तारीख है 29 अक्टूबर, वार मंगलवार। तो चलिए शुरू करते हैं आज के समाचार। सभी को नमस्कार, मैं गोविंद पारिक। दांडेली के CITU बिल्डिंग में आज सॉफ्टेक कंप्यूटर एजुकेशन, लॉयंस क्लब, स्क्वाड वेज, बॉश और जन शिक्षा संस्था ने संयुक्त रूप से स्वास्थ्य जागरूक कार्यक्रम व जनरल हेल्थ चेकअप का कार्यक्रम रखा। कार्यक्रम में डॉक्टर भंडारी जी, डॉक्टर कामत जी, डॉक्टर शेखर जी और डॉक्टर नसरीन जी उपस्थित थे। काफी संख्या में बच्चों और महिलाओं ने इस कार्यक्रम का लाभ लिया। ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಹಾಗೂ ನಗರದ ಹೆಸರಾಂತ ವೈದ್ಯರಾದಂತಹ ಶೇಖರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೇಖರ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಇವೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಮೇಡಮ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚಕರಾದಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರ ಶೋಷಣೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ವಾಗತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೇಳಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ दांडेली के सरकारी अस्पताल में आज ब्लड बैंक की शुरुआत हुई। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का यह दिन दांडेली के इतिहास में स्वर्णमयी दिवस है। आइए दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। ಮೇನ್ ಇವತ್ತು 29 2024 ನಮಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ
ದಿನ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು 10 ವರ್ಷದ ಡ್ರೀಮ್. 2013ನಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅವಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. 2016ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಕ್ತ ನಿಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಆಗಿತ್ತು. ಫ್ರಮ್ 2016 ಟು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡೆತಡೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ಮಷಿನ್ಸ್ ಬಂತು. ಕ್ರೋಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 70-80 ಲಕ್ಷ ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಮಷಿನ್ಗಳೆಲ್ಲ ತರಿಸಿ ONGC ಅವರು, MRPL ಅವರು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ತರಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ MLA ಸರ್ ಅರವಿಂದ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಮಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬಂತು. ನಾವು ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಇದು ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ದಾಂಡೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಮಂದಿಗೆ ಅನೇಮಿಕ್ ಭಾಳ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಭಾಳ ಮಂದಿಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ 9 ಹೆಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ 9, 10 ಹೀಗಿದೆ. ತುಂಬ ಮಂದಿಗೆ ಈಗ 5-6 ಇದ್ದವರಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ತರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹುಬ್ಳಿಯಿಂದ ತರಿಸ್ಬೇಕು, ಸಿರ್ಸಿಂದ ತರಿಸ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಅವರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಂಚ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ರೂಪಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹಂಚ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು 15-20 ತರ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ತಂದು ತಗೋಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಈಗ ಇವನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಮಷಿನ್ ಇದೆ, ಸಪ್ರೇಷನ್ ಮಷಿನ್ ಇದೆ, ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡಬಹುದು, ಪ್ಯಾಕ್ಸನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಹೋಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಂದ್ರೆ ಇದು 3 ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ 2-3-4 ಮಂದಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ನಾವು ಈಗ ಈ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾಫ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊರತೆಗಳಿದಾವೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಿರೋದು DHS ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಮುಂದೆ ಇದೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇವತ್ತು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟುಡೇ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿರ್ಸಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೆ ಈಗ ಬ್ಲಡ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಟುಡೇ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕೇ ಬೇಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಎಲ್ಲಾನು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ನಡೆಯುವಂತ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಲೆಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. Inaugurating blood bank and the blood donation is one of the golden movement in the history of medical field of Dandeli. Actually, I came here in the year 1988. Earlier, we had a very simple blood bank. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗತಿ. ಸೊ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು. ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯ ಮಾಡುವರು, ದುಡ್ಡಿದ್ದವರಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸಿಕ್ಕದ್ದೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಾಂಡೇಲಿ ಎಂಥ ಊರು ಅಂದರೆ ಈ 7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದಾಂಡೇಲಿಯ ಹಳ್ಳಿ ಗಾಡುಗಳನ್ನು ಮನೆಗಳನ್ನು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದೊಂದು ಬಡವರ ನಾಡು. ಸಿದ್ಧಿಗಳು, ಗೌಳಿಗಳು, ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು ಮತ್ತು ಏನದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು 15-20 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಜೀವವನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳು ಬದುಕ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಾಡು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬಡವರ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಆರಂಭವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕೊಡಲಾರದೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತವಾಗ್ತಾ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರೆತೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರಂಭವಾಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ವೈದ್ಯರಿಗೆ, ಅಪಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದವರಿಗೆ, ಅಸಹಾಯಕರಿಗೆ, ನೊಂದವರಿಗೆ, ಬೆಂದವರಿಗೆ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಒಂದು ಜೀವ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಇದು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. सभी को नमस्कार। दांडेली के इतिहास में स्वर्णीय अक्षरों में लिखे जाने वाली तारीख 29 अक्टूबर 2024। वजह क्या है? वजह है ये यहाँ खड़े मेरे मित्र लोग और यहाँ के स्थानीय विधायक श्री RV देशपांडे जी, वेस्ट कोस्ट पेपर मिल और भी कई महानुभाव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करें, जिसके चलते आज दांडेली में पहली दफे इस डिस्ट्रिक्ट में
दूसरा, ब्लड बैंक की शुरुआत हुई है। आइए मेरे साथ कई महानुभाव उनसे बात करते हैं। शुभ नाम? आरपी नायक, रोटरियन। हमारा रोटरी का ये पहला मुद्दा था, इंटरेस्ट था, तो दांडेली में एक ब्लड बैंक होना है। चाहिए। तो आज वो साकार हो रहा है। आज सपना साकार हो रहा है, आपकी मेहनत साकार हो रही है। रोटरी क्लब दांडेली सेक्रेटरी आशुतोष कुमार राय। हम लोग का हमेशा से हम लोग दो चीज़ में रोटरी को आगे ले जाने का प्रयास करते हैं। रोटरी का फाउंडेशन भी यही कहता है कि एक शिक्षा के क्षेत्र में, एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता हाँ, दी जाती है। हाँ, तो ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में अद्भुत कार्य हुआ है दांडेली में ब्लड बैंक आके। इसके लिए मैं नायक सर को बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने रात दिन मेहनत करके, पेपर वर्क करके और पूरा मेहनत करके, सर्वे करके सब अपना प्रेजेंटेशन ढंग से दिए। और हमारे एमएलए आरपी देशपांडे साहब का भी इसमें सहयोग रहा। तो ये सब होके यहाँ ब्लड बैंक आ गया है। तो मैं दांडेली वासियों को भी धन्यवाद देता हूं कि उनको धारवाड़ हुबली भागना पड़ता था, अब नहीं होगा। और हम लोग को भी रोटरी क्लब से हम लोग कैंप करेंगे और कैंप करके जितना भी ब्लड इकट्ठा होगा हम सर को जो है हैंड ओवर करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक से हाथ एक अगर आगे बढ़ता रहे तो समस्या नहीं रहती। अब मैं जिनसे बात कराने जा रहा हूं, उनके सतत प्रयास, लगातार मेहनत और एक एम, एक टारगेट लेके चलना है कि दांडेली में ब्लड बैंक होने वाला है, वो मेरे साथ है। पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। कई यहाँ से अधिकारी आपसे पहले आए, उन्होंने कोशिश की, उन्होंने अपने हिसाब से प्रयास किया, लेकिन आपका प्रयास, आपकी मेहनत रंग लाई। दांडेली में पहली बार ब्लड बैंक आया, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कहेंगे सर जी? देखिए, हमारा क्या है, मेनली हमारा शासक सर का इसमें बहुत आरवी देशपांडे जी का विधायक जी। हाँ जी, इसमें जो मशीनरीज जो आए हैं, लाखों के करोड़ के मशीन से जो यहाँ पे मंगवाए गए थे 2016 में 2016 में मंगवाई गई मशीन है, दैट वाज डोनेटेड बाय ओएनजीसी एंड एमआरपीएल। उन्होंने उसको ये किया था। अच्छा, वो साहब के इनके वजह से हुआ था, सहयोग से हुआ था। अभी आप उसका एस्टिमेशन लोगे तो और डबल ही हो गया होगा। आज की डेट में अगर कॉस्टिंग पकड़े तो डबल है। सो दोज मशीन्स वेयर देयर। लेकिन क्या है, एक इसमें एक ब्लड बैंक स्टार्ट करने के लिए लाइसेंस की जरूरत है। लाइसेंस मिलना पहले स्टेट से होता था, उसके लिए मेहनत हुई थी। लेकिन मेरे पेरेंट में भी 1.5 साल से मैं कर रहा था EMO DHO चार्ज और AMO में लेकर चल रहा था। जब इसमें देख रहा था कि इस स्टेट से होके इंक्वायरी होके उसमें सब करके चले गए और 15 दिन में पता चला वो नहीं हो रहा। सर का जब KDP मीटिंग वगैरह चलता तो हमेशा पूछते, सर का मतलब आरवी देशपांडे। जब भी KDP मीटिंग, उनका फर्स्ट क्वेश्चन रहता था, ये क्या किया तुमने? हाँ। और हम लोग बोलते सर ऐसा हुआ था, ऐसा वैसा नहीं, तुम फॉलो अप नहीं कर रहे हो। यानी इस ब्लड बैंक को विधायक श्री आरवी देशपांडे जी ने बहुत इनिशिएटिव लिया। तो जब भी पूछते थे तब हमको मैं था, उससे पहले से चल रहा था, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। फिर ये जब सर ने पूछा, फॉलोड इट अप, फॉलो करते कहाँ है, किधर है, बाद में इट वाज लाइक फाइल फॉलो अप करके बट ये काम बाद में सेंट्रल से लेना बोल के हो गया। सेंट्रल इससे वहाँ तक भी आरवी देशपांडे सर और उनके प्रभु सर जो है, उन लोगों ने बहुत ये करके मेहनत प्रयास किया। नहीं तो ब्लड बैंक एक इसमें आसान बात नहीं है। किसी भी बहुत लोगों ने ट्राई किया शहर में, अभी दांडेली जैसे शहर में, डिस्ट्रिक्ट में यह दूसरा ब्लड बैंक है। और इसको अगर उपलब्धिता कहें, अचीवमेंट कहें, तो मेरे हिसाब से ये कम नहीं है। एम आई राइट? मैं सही हूँ? एग्जैक्टली। और रोटरी बता रही है कि रोटरी प्रेसिडेंट है मेरे साथ राहुल बाबा जी। अब रोटरी बताती है कि मदद का हाथ सिर्फ आगे बढ़ाओ, सही है ना। और ये दांडेली में ये होना, हिंद के फरिश्ते यहाँ पर है जो अभी कुछ फ्रूट्स वगैरह ये अपने पेशेंट्स को देते रहते हैं और अनेक कार्य करते रहते हैं। आप सभी को और इस ब्लड बैंक में सहयोग करने के लिए जिन के प्रयास ने यह एक खुशी दी है दांडेली निवासियों को, उन सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और एक चीज देखना बाकी है कि इस ब्लड बैंक का पहला डोनर कौन होगा, वो भी भाग्यशाली होगा। चलिए देखते हैं। ये देखिए, ब्लड बैंक की शुरुआत हो चुकी है
और रक्तदानी अपना रक्तदान करते हुए देख रहे हैं। ये शुरू हो गया आज से रक्तदान करना, हाँ शुरू है ना। ये पहली बार दांडेली में ब्लड बैंक खुला है, ब्लड बैंक खुला है ना। First तो time। ये काफी बच्चे हैं। आपका नाम बात कर सकते हैं ना पर? चेतन शंकर जी, चेतन शंकर मटली। चेतन शंकर मठ। चेतन अपनी चेतना को जगा कर रक्तदान करता हुआ है, वेरी गुड, है ना। आपका नाम? नवीन मुनगेटी। नवीन नवीन। नवीन नवीन अपना नवीन ब्लड लोगों को देता हुआ फिर शरीर में नवीन ब्लड आएगा, है ना। आपका नाम बेटा? विद्या। विद्या। पहली बार दे रही हो ब्लड? पहली बार। अच्छा लगता है ना, है ना। ये रक्त है ना, लोगों को जीवन दान देता है बेटा। यह भगवान का दिया हुआ अपने पास एक बहुमूल्य चीज है जो अपन दूसरों को मदद करते हैं, जीवन दान करते हैं। ये देखिए और भी कई लोग हैं यहाँ पर जो कतार में खड़े हैं इस शुभ कार्य में सहभागी होने के लिए। ये डॉक्टर्स वगैरह है जो जिनकी निगरानी में रक्तदान हो रहा है। वहाँ पर और भी महानुभाव है, आइए यहाँ पर और भी महानुभाव है जो रक्तदान कर रहे हैं। आपका शुभ नाम? मोहम्मद हनीफ। मोहम्मद हनीफ। कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। एक खुशी महसूस होती है ना, रक्तदान महादान। आपका शुभ नाम? जिब्रान। जिब्रान इब्रान। जिब्रान। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना, निकल रहा है खून धीरे धीरे और आनंद आ रहा है जोर जोर से, है ना। वेरी गुड, है ना। वहां पर भी आपका शुभ नाम? विजय कुमार। विजय कुमार। तो आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, इससे पहले दे चुके हो? फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम दे रहे हो, तो ये शुभ कार्य की शुरुआत हो रही है ना। किसी के जीवन में हमारा रक्त काम आए, इस शुभ कार्य की शुरुआत हो रही है ना। ये हिंद के फरिश्ते के कार्यकर्ता लोग हैं जो पूरे तन मन धन से हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। चलिए मेरे साथ और देखते हैं। ये मेरे साथ, आपका नाम? हबीबुल रहमान शेख। हबीबुल रहमान शेख। फर्स्ट ब्लड आप ही ने दिया? जी हमने दिया। हाँ। अच्छा लगा? बढ़िया लगा। अच्छा लगा, बहुत बढ़िया है ना। हाँ। क्यों, मतलब रक्तदान जीवन दान होता है। आपका नाम? किरण जोसेफ। हाँ, आपने भी रक्त दिया? यस। ये सर्टिफिकेट्स है। हाँ। ये देखिए सर्टिफिकेट्स है और बहुत अच्छा कार्य है ना। ये जीवन मंजुनाथ कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। यानी ब्लड देना कोई कमजोरी होती है ऐसी कुछ भी नहीं, है ना, खुशी होती है। आपने भी रक्तदान किया, क्या महसूस किया आपने? उसमें खुशी मिली। खुशी मिली, वो खुशी जो औरों को कुछ देकर मिलती है तो वो रक्त देकर मिलती है। इस खुशी को महसूस करने पर हमें भी आनंद आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो कैप्टन है, आपने भी रक्त दिया या लोगों को दिला रहे हो? लोगों को दिला रहा हूँ। लोगों को दिला रहे हैं। वक्त पड़ने पर किसी के लिए खड़े रहने वाले हमारे हिंद के फरिश्ते, एक नया कदम हिंद के फरिश्ते और ये हमारे नौजवान बच्चे जो भारत का भविष्य निर्माण करेंगे। आज और किसी के जीवन में रक्तदान काम आए, रक्त काम आए, इसके लिए इन्होंने रक्तदान किया। थैंक यू सो मच। यहाँ एक महिला भी है जिन्होंने रक्तदान किया है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सलमा सैयद हुसैन है। आपने रक्तदान किया, कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार आप ये रक्तदान कर रही है, इसके पहले भी किया है? जी नहीं, मैं पहली बार दे रही हूँ। पहली बार। तो आप क्या सोच कर यहाँ पे आई आप कि मैं रक्त दूंगी? हाँ, मैं रख देना ही चाहती हूँ बोल के आई थी। अच्छा। पहले ये था लेकिन अभी हुआ नहीं है, लेकिन अभी मेरा हो गया। अच्छा, फर्स्ट टाइम आपने रक्तदान किया है। आपका सर्टिफिकेट भी सलमा सैयद ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है आपका, है ना। तो आपको पता है रक्त देने से क्या होता है? हाँ, रक्त देने से दोबारा हो जाता है रिड्यूस, और जो जान के लिए कुछ कर रहे उनको कुछ ब्लड मिले तो अच्छा है ना। हाँ, जीवन दान मिलता है दूसरे को। अपने शरीर में ब्लड बनने के लिए कितना समय लगता है वापस? 3 महीने। 3 महीने में जो ब्लड है वो मैच्योर हो जाता है। और ये इसमें एक रक्त का एक कण रहता है जिसको आरबीसी कहते हैं। वो आरबीसी का जो रीजनरेशन टाइम है वो 120 डेज है। तो 120 डेज में अगेन रीजनरेट मैच्योरिटी हो जाता है। 120 डेज हमेशा खून बनते रहता है। हमारे जो बोन मैरो के जो सेल्स रहते हैं उसमें हमेशा खून बनते रहता है, बट जो नए सेल्स हैं उसको मैच्योर होने के लिए 120 डेज लगते हैं। अच्छा, 120 डेज हो गया। हाँ। आज मान लीजिए मैंने ब्लड दिया, वो हमेशा चक्कर चलते रहता है। अभी 120 डेज क्यों, 119 डेज
118 डेज। हाँ, हाँ। तो हमेशा ये खून बनने की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती। मैं पूछ रहा हूँ, मैंने अभी ब्लड दिया है, आफ्टर 120 डेज क्या मैं वापस ब्लड दे सकता हूँ? डेफिनेटली दे सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? इफ यू मीट द क्राइटेरिया, माने आपका शुगर लेवल, आपका हेमोग्लोबिन लेवल, ये सब एक लेवल शारीरिक जांच के बाद, जांच के बाद, शारीरिक जांच के बाद थोड़े वायरल कण रहते हैं, वो स्क्रीन करने के बाद ही आपका ब्लड जो है ना और एक इंसान को दिया जा सकता है। मैडम जी, ये कार्य श्री आर.वी. देशपांडे जी के सहयोग से, उनके मार्गदर्शन से, उनके सतत प्रयास से डॉक्टर साहब ने पता नहीं कितनी मेहनत की होगी, कहाँ गए होंगे, तब ये सफलता मिली है। दांडेली वासियों को क्या बोलना चाहेंगे आप? ये बहुत खुशी की बात है कि इससे पहले भी शुरू हुआ था, देशपांडे साहब ने ही शुरू किया था, लेकिन वेस्ट कोस्ट पेपर मिल में शुरू हुआ था, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल सका। तो इधर जो ये ब्लड कैंप ये किए हैं और हमारा जो खुला है ब्लड का बैंक, ये बहुत बहुत खुशी की बात है। ये दांडेली के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमको अगर ब्लड लेना था तो हम हुबली जाना, धारवाड़ जाना, ऐसा सब बहुत प्रॉब्लम्स आते थे हमको, लेकिन इधर इमीडिएटली अगर अवेलेबल है खून, तो ये बहुत खुशी की बात है। और साहब का बहुत धन्यवाद करते हैं। साहब का विशेष धन्यवाद दांडेली का हर एक निवासी देगा कि उतनी दूर जाना पड़ता था। और एक डॉक्टर साहब आपसे पूछता हूँ छोटी सी बात कि क्या यहाँ पे जो पेशेंट्स को ये जो आइए ना साहब प्लीज, यहाँ पे जो ब्लड दिया जाएगा वो चार्जेबल बेसिस पे होगा या कैसे होगा? मान लीजिए अगर कोई सरकारी अस्पताल में आपके यहाँ पेशेंट एडमिटेड है और उसको रक्त की जरूरत है और वो ब्लड ग्रुप आपके पास अवेलेबल है, तो क्या वो चार्जेबल बेसिस पे होगा या फ्री ऑफ कॉस्ट होगा? देखिए, इसका एक प्रोटोकॉल रहता है। तो अभी ब्लड हम लोग अब जो लेते हैं उसका हम लोग टेस्ट करेंगे, उसको ऑलमोस्ट 400 रुपीज़ मिनिमम तो चार्ज होगा हमारी तरफ से। अच्छा, तो उसका खर्चा आता है, चार्जेस टेस्ट मिनिमम कितना आता है पता नहीं, अभी ये ज्यादा खर्च रहता है, उसका खर्च करने कितना ये होता है, तो एक मिनिमम अमाउंट रहता है। अच्छा। अभी जब मैं इधर हमारे पास ब्लड बैंक नहीं था, मैं सिरसी से मंगाता था, वो फ्री था, हमारा हॉस्पिटल को गवर्नमेंट में फ्री देना बोल के रहता है, लेकिन दे वर चार्जिंग अस 550 रुपीज फॉर द ब्लड पर यूनिट। पर यूनिट क्यों बोले तो एक अगर हम लोग यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका क्या रहता है, लेकिन उसको चलना चाहिए। अगर क्या होता है, इसका ब्लड इसके लिए हमारा इसका क्या फंड्स अकेला सेपरेट फंड्स नहीं रहते, शायद नहीं रहते, यूजुअली नहीं बोल के बोले हैं। अगर इसका रनिंग रखने के लिए मिनिमल चार्जेस तो रखना पड़ेगा। अभी कैसा रहता है, अभी हमारा अभी एक हेड रहता है, उनको एक पेशेंट बहुत गरीब है, कुछ भी नहीं पाता, उसको हम लोग दे सकते हैं आपसी सहयोग से वी कैन यानी वो पैसा तो लगेगा, चाहे वो कोई और मिनिमल रहता है। हाँ। इसके ऊपर हम लोग वी कांट डू इट फॉर फ्री, बोल तो ये प्रॉफिटेबल नहीं होगा, लेकिन नॉट प्रॉफिटेबल, नॉन प्रॉफिटेबल, नो प्रॉफिट पे दिया जाएगा। नो लॉस प्रॉफिट, हम लोग को पैसा रख के उधर करने का क्या है गवर्नमेंट को, ये किसी को सैलरी को तो नहीं जाएगा ना। सही बात। अब इसका जो कंपोनेंट्स मंगाने के लिए उसको हम लोग दिखाने के लिए वोट देना पड़ता है। हाँ। अब सोचिए हम लोग अभी कुछ एक हॉस्पिटल्स में एक एक्सरे के लिए मिनिमल चार्ज, एक्सरे फिल्म लाने के लिए चार्जेस मिनिमम 20-30 रुपए लेते हैं, बाहर 800 रुपए लेते हैं, लेते या 20-30 रुपए या 40-50 रुपए लेते होंगे। बट ये किस लिए होता है, अगर अभी फिल्म का कवर या फिल्म मंगाने का दूसरे का रहता है, हम लोग को अभी हॉस्पिटल का मेडिसिन वगैरह लेने का रहता है। मेडिसिन अगर प्राइवेट, अभी सब लोग पूछते हैं ये मेडिसिन इधर क्यों नहीं मिलते, वी ट्राई टू जो नहीं मिलता, अगर हमको सप्लाई कम हुआ तो मंगाने के लिए देखते हैं, तो आई मेक द श्योर दैट एवरीथिंग इज देयर। तो ये जो अमाउंट जो ऐसा थोड़ा कलेक्शन जो होता है, इट विल बी स्पेंट ऑन देम ओनली, क्योंकि उसका पूरा रिकॉर्ड रहता है, हमारा इंस्पेक्शन ये होता है, सो हमको वो दिखाना पड़ता है, हाउ वी आर स्पेंडिंग इट, हाउ आर यूटिलाइजिंग इट। कोई भी अभी क्या है, हम लोग अगर कुछ ला रहे हैं, अगर ये लॉन्ग रन के लिए सालों के लिए इतना मशीनरी लेके चलना पड़ेगा, तो इसको चलाने के लिए अगर मशीन का भी कैलिब्रेशन 6 महीने को कैलिब्रेशन करना पड़ता है। एक कैलिब्रेशन में कराऊंगा तो 10,000 रुपए निकाल कर देना पड़ेगा, उसको किधर से दूंगा? तो इसके लिए नॉमिनल चार्जेस, सो ईयरली 20,000 आई हैव टू स्पेंड फॉर कैलिब्रेशन। वो बेंगलोर से आता है बंदा, लेकिन अगर आप उन बहुत ही कम दामों में अगर उपलब्ध कराते हैं, तो यहाँ से उस पेशेंट के रिलेटिव्स का जाना आने का खर्चा, उसका टाइम स्पेंड होना और अदर्स खर्चा, और जहाँ तक मेरा अंदाजा है 1,000 या 1,200 रुपए कुछ पर यूनिट को वहाँ पर लेते हैं। अगर सरकारी अस्पताल में ये सब हमको एक सही दाम में अगर मिलता है तो ये
बहुत अच्छी बात है। और क्या है सर, शायद मतलब अभी प्रोटोकॉल क्या है पता नहीं, बीपीएल कार्ड वालों को फ्री करने का है वो एक्चुअली, हो सकता है वो प्रोबेबली मैं पूछताछ करूंगा, अच्छी क्योंकि पहले हमको स्टार्ट करने का था। तो हाँ, अभी बाकी करना है, अभी क्या दिन अभी स्टार्ट होगा, कलेक्शन करेंगे जब 2-3 दिन में आई जस्ट मैनेज इट आउट। तो उसमें बीपीएल कार्ड को तो फ्री होगा, प्राइवेट हॉस्पिटल से जो भी आएंगे दैट विल बी चार्जेबल। ये तो सही बात है, आपको सही बात है, सही बात है, सही बात है। वो प्राइवेट हॉस्पिटल वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, दे आर पेइंग टू द प्राइवेट। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देंगे, विल डू समथिंग अबाउट इट। सही बात, गवर्नमेंट विचार किया जाएगा, दैट विल बी गिवन लाइक फ्री। वो पीपल कार्ड ये रहता मिनिमम 300-400 रुपए आएगा, उससे ज्यादा तो नहीं होगा। हाँ सही बात। तो प्राइवेट से खुद आएगा तो उसको चार्जेबल, हमको जो जितना दे रहे हैं उसे हम लोग कमी करके कुछ, मैं बात करके डीएचओ ऑफिस से, वहां से मैं अपना डिसीजन नहीं, सही बात है, उच्च अधिकारियों से बात करके करूंगा, एक प्रोटोकॉल में लेकर सबका निर्णय जो उच्च अधिकारी देंगे उसके बाद में होगा। अभी हम लोग को और एक माहिती, हम लोग हमारे दांडेली के ये जोइडा और हरियाणा में जो ब्लड कैंप्स चल रहे थे, एक साल में 1000 ब्लड्स दे रहे थे सब लोग, 1000 ब्लड्स दे वर गिविंग टू हुबली, सिरसी एंड ऑल। तो सोचो हमारे ये यूथ सब हमारे में कितने कितने लोग हैं, तो 1000 मेंबर्स वर गिविंग द ब्लड सिटीजंस। ब्लड कैंप हमारे लिए लिस्ट निकाले थे हम, कैंप जितना चलता है इतने कलेक्शंस होते थे, मिनिमम 1000 ब्लड्स कलेक्शन होते साल में मैडम। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग एक्चुअली। तो अभी इतने ब्लड अगर बाहर जा रहे थे, हम इतने ब्लड इधर रखेंगे तो इट्स हमको सही बात है, हम दूसरों को देंगे। सही बात है, सही बात। तो हमारे को अगर वर्कआउट और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड इधर अब यूटिलाइज होगा तो बहुत अच्छा चलेगा सर। वो अब तक सुबह से ब्लड डोनेट का क्रिया चालू है। अब तक कितने यूनिट्स आ गए अपने पास? 50 यूनिट हुआ सर। अब तक 50 यूनिट। अपने पास कितने हैं? अभी तो 30 है सर हमारा पास। 30 है। 20 तो ऑलरेडी सिरसी लोग ब्लड बैंक से आया था। अच्छा, वो लोग लेके गए। वो लोग 20 लेके गए, तो 30 अपने पास आज की डेट में 30 है। 50 इज कलेक्टेड। उनको अभी क्या है, ब्लड बैंक नया स्टार्ट कर रहे थे ना, सो वी डिडंट वांट टू डू इट अलोन। सिरसी वालों को मिलाया, कुछ भी ये नहीं होना। अभी वो लोग आएंगे तो कुछ तो लेके जाएंगे। सही बात है, सही बात। तो 20 उनको लेके गए, तो हम लोगों ने कलेक्शन 50 किया है अभी। अच्छा 50 किया है, 20 अपन ने दिया है, 20 लेके जाएंगे, 20 लेके गए वो लोग ऑलरेडी। उसमें कौन कौन सा ग्रुप का कितने यूनिट्स है बता सकते हैं या टाइम लगेगा? वो टाइम लगेगा, अभी पूरा होने दो, बाद में हम लोग ये करके उसका ये हिसाब करेंगे। अच्छी बात है, बाद में और उसका चेकअप बाद में चल के, आज ही देने नहीं होगा इसको। नहीं चलो कोई बात नहीं, लेकिन सब अलग अलग ग्रुप्स के यूनिट्स मिले होंगे। नेगेटिव्स मिला है, नेगेटिव तो वो तो अभी देखेंगे। इसलिए हम लोग को क्या है कि नेगेटिव्स वाले ज्यादा ये नहीं करते हैं, लेकिन हमारे पास इनके पास जो है लिस्ट है और अदर मेरा ए नेगेटिव है, और जब भी जरूरत पड़ेगी मैं दूंगा। अगर मैं आपके स्वास्थ्य निरीक्षण में अगर मैं आता हूं तो मेरा ए नेगेटिव है, कभी भी किसी भी को भी जरूरत पड़े मैं अवश्य दूंगा। जी सर, ऐसे ही हम लोग वही कर रहे हैं। नेगेटिव हम लोग इग्नोर रखते हैं, ये पॉजिटिव का हम लोग जो कुछ कॉमनली आता है ब्लड जो कलेक्शन में, अभी देखो 50 पॉजिटिव आए थे, पूरे पॉजिटिव है, एक भी नेगेटिव कलेक्शन नहीं हुआ हमारे पास। तो सोचो, तो जो वेरी गोल्ड बोले तो हमके लिए, हमारे लिए नेगेटिव ब्लड ग्रुप सही बात, उसका वो बंदे को हम लोग मार करके उनको बात करके और पहले ही रखते हैं, इफ इमरजेंसी टाइम में ऐसा रहे तो कलेक्शन करके ये करने का। मैं भी हमारे पारिक प्रेजेंटेशन टीम की तरफ से आप सबके सामने बोल रहा हूँ कि मैं भी कोशिश करूंगा कि ए नेगेटिव कुछ एक 20-25 ए नेगेटिव नहीं, सिर्फ नेगेटिव ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, वो उन लोगों का एक टीम बनाऊंगा, और वो टीम हम ये कोशिश करेंगे कि आपको जब भी किसी भी पेशेंट्स को जरूरत पड़ेगी, हम लोग उसके अंदर हमारे से जो होगा वो सहयोग करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। यहाँ पर मेरे साथ और भी कई महानुभाव है जिन्होंने रक्तदान किया है। आपका शुभ नाम? उस्मान हैदर शेख। आपने ब्लड दिया सर। पहली बार दिया या पहले दे चुके हो? ये पहली बार दिया सर। पहली बार दिया, बहुत बढ़िया। आपने भी ब्लड दिया है, रफीक खान है ना? पहली बार? फर्स्ट टाइम। अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है ना? जाफर भाई जी हो गया ब्लड देख? हो गया सर। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। इसके पहले बहुत बार आपने ब्लड दिया है? हाँ, बहुत बार दिया हूँ है ना? कौन सा ग्रुप है आपका? मेरा B+ है, बी पॉजिटिव और आदमी भी पॉजिटिव। वेरी गुड, है ना? आप देने आई थी लेकिन HB कम रहा, है ना? चेक किए, बहुत इच्छा थी ब्लड देने की। अच्छी खुराक लीजिए जिससे ब्लड बने, जब नेक्स्ट टाइम होगा तो जरूर देना। आपके माताजी ने तो आपके बदले दे दिया, है ना? आपका शुभ नाम? इनका बोला
यहाँ इनका तो बहुत तबीयत से लिया हूँ मैंने। आपका शुभ नाम? मेरा बशीर गिरियाल। आपने ब्लड दे दिया? देने के लिए आया था। देने के लिए आए। एचपी कम रहने की वजह से। एचपी कम होने की वजह से इच्छा होनी चाहिए। शारीरिक जांच के बाद जो भी नतीजा निकले, लेकिन देने की इच्छा है, ये बहुत बड़ी बात है ना? और एक बात बोलिए ना। तू बोलता है। ब्लड बैंक दांडेली में खुला, कैसा है? बहुत बढ़िया हो गया, बहुत अच्छा काम। अच्छा जो काम बाहर हो गया। जाते हैं वो बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हुआ। देशपांडे साहब का बहुत इसमें देशपांडे साहब का बहुत बड़ा हाथ है। देशपांडे साहब ने कोशिश करके ब्लड बैंक लेकर आए हैं। ब्लड बैंक लेके आए तो जो भी गरीबों को पेशेंट को बहुत होगा अच्छा होगा, उनको यहाँ पे सुविधा हो गई। दांडेली के आसपास के लोगों को, सबको भी है ना। आपका शुभ नाम? अब्दुल गनी। अब्दुल गनी एकदम तबीयत से है ना? वो पॉजिटिव। आपका ब्लड ग्रुप पहले बार दिए या 14th टाइम? हाँ, बहुत बढ़िया। ऐसे रक्तदानी है जो रक्त देकर लोगों का जीवन बचाते हैं। कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। जी, जो ब्लड बैंक अभी दांडेली में खुला है, देशपांडे साहब की जो इसके पीछे बहुत बड़ी ताकत है। हम देशपांडे साहब जी का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, क्योंकि इमरजेंसी के वक्त हमें आप नहीं, दांडेली का हर एक निवासी, दांडेली के आसपास का हर एक निवासी देशपांडे जी का हृदय से धन्यवाद करता है, और अनिल नाइक कुमार जी का धन्यवाद करता है, विश्वकोश पेपर मिल का धन्यवाद करता है, जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस ब्लड बैंक को दांडेली में लाने में सहयोग किया, उन सभी का हृदय से धन्यवाद करता है। ONGC जिन्होंने वो इंस्ट्रूमेंट दिया, ब्लड इंस्ट्रूमेंट, उनका धन्यवाद करता है, हर एक का धन्यवाद करता है। थैंक यू सो मच। दांडेली के इस ऐतिहासिक दिन को दांडेली के इतिहास में लिखे जाने वाले स्वर्णीय अक्षर में आज के दिन को 29 अक्टूबर को इस इतिहास को रचने में सबसे बड़ा योगदान है ONGC के MRPL का। इस वक्त मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी जी है। आपका शुभ नाम सर? मनोज कुमार जी है। मैं पूरे दांडेली और दांडेली के आसपास के सभी निवासियों की तरफ से आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं, और किन शब्दों में मैं आपका धन्यवाद करूं वो शब्द भी नहीं है। क्यों? मतलब जीवन दान के लिए सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वो है रक्त, क्योंकि हर चीज का सब्स्टिट्यूट है पर ब्लड का सब्स्टिट्यूट नहीं है। उस ब्लड बैंक में आपका जो योगदान है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। हमारे डॉक्टर साहब के सतत प्रयास, RV देशपांडे जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से और आप सभी के आशीर्वाद से यह काम संभव हुआ। सर जी, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे प्लीज? ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮದು MRPL ಮತ್ತು ONGC ಕಂಪನಿ ಮಂಗಳೂರು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಲವಾರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಯೋಗದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ದಾಂಡೇಲಿಯ ಈ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯದ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದರದ್ದು ಇವತ್ತು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ರಕ್ತ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಹೇಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯದ ಈ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ದಾಂಡೇಲಿಯ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. बहुत बहुत धन्यवाद सर जी का कि ये सिर्फ दांडेली के लोगों के लिए बोल रहे हैं, दांडेली के नहीं, दांडेली के आसपास रहने वाले उन आवश्यक लोगों को जिनको रक्त की जरूरत है, उन सब के लिए आपकी इंस्टीट्यूट, आपकी कंपनी के लिए, आपके लिए जरूर हमारी शुभकामनाएं सर जी। धन्यवाद। MRPL बैंक उसका ONGC का CSR 2013 started in 2013 and blood bank procedure approvals blood control department
And he is a son of soil of Dandeli. Manoj Kumar, from MRP. These are the people who helped us. He gave 1 crore. He gave 5 crore से परमिशन नहीं। This is ज़्यादा आपका contribution है sir. You will be after these people. वो important है। वो बराबर है लेकिन we try ultimately. I have seen sir whatever improvement things are happening because of you in Dandeli. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಈಗ ಹೇಗೆ ಲೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು 50 ಬ್ಲಡ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. 50 ಬ್ಲಡ್ಸಲ್ಲಿ 20 ಬ್ಲಡ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ಸಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು ಸರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ 20 ಡೇಟ್ ಚೆಕ್ ಆಮೇಲೆ ನಾಳೆಯಿಂದ next. Up to 150 blood units store ಮಾಡಬಹುದು. The components, the PI. ಅನ್ನೋದು 350 ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ PI almost 3 months ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ वो बात वो सब चलो नीचे देंगे आप
ज्योतिर्गमयं मृत्योर्मामृतं गमयम् ॐ सहना भवतु सहनौ गुणतु सह वीरं करवावहै तेजस्विनामगीतमस्तु महाविद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ RV ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದ ನಾ ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೇ, ತಾಯಂದಿರೇ, ಹಿರಿಯರೇ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳೇ, DHO ಅವರೇ, ಪತ್ರಕರ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದು ಕನಸು ನೆನಸಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮನೂ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಭಾಳ ಜನ ಇಲ್ಲದ್ರೂ ಸಹ ಕೆಲವು ಜನ ಭಾಳ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಬ್ಲಡ್ ಸೆಂಟರ್, ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಅಲ್ಲ, ರಕ್ತದಾನ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ? 2013 ನಾನು ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿಯವರು ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಪತ್ರ ಬರ್ತಿದೆ 2013 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತೆಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು? 12 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ 2 ವರ್ಷ ಆದ ರಾಮನ ವನವಾಸ ಮುಗಿತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲ, ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ, ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತರ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತಾವ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ದಾಂಡೇಲಿ ಇದು ಒಂದು ಕೇವಲ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ದೇಶದಿಂದ ವಿದೇಶದಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ಕೂಲಿಕಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾಂಡೇಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂದು ದಾಂಡೇಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದೆ. ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ, ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಕಿದ್ದು. ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅದೇ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅದೇ, ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾ MRP ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು, ಅವ್ರು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ನಾನು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದೆ, MRP ಆಗಬಾರ್ದಂತ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ನಡೆದಿತ್ತು.
MRP के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन चला था कि MRP should not be established. Am I right? ನಾನು ಓಪನ್ ವಾಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ, MRP will come, nobody should oppose. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬರಬೇಕು, ವ್ಯಾಪಾರ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಅವಾಗ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ನತೆ ಬರ್ತದೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತವೆ. ಅವಾಗ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ, MRP ಬಂತು, ONGCI, MRPL. ಇದು ಬಹಳ ದೇಶದ ನಾವು ಅಭಿಮಾನ ಪಡೆಯುವಂತ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಅವೆಲ್ಲ ರದ್ದುಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು MRPಗೂ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ONGCಗೆ. ಇದಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ CSR ನಿಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. MRP ಎಲ್ಲೇ, ನಿಮ್ಮ ದಾಂಡೇಲಿ ಎಲ್ಲೇ, ದಾಂಡೇಲಿ MRP ಸಂಬಂಧ ಏನು? ಹಾಗಾಗಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಮತ್ತು ವಿಳಂಬ ಆದರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊರತೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಎಫರ್ಟ್ಸ್, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಆಲ್ ಅಲಾಂಗ್. ಇವತ್ತು ಅವರು ನಮ್ಗ I don't know whether you know, 4 drinking RO plants were also sanctioned by MRPL. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದಾಂಡೇಲಿಯಲ್ಲಿ 2 ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಹಲ್ಯಾಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 2 ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, 4. ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಾಡಿ 10 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು? ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಗೊತ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಜಾಣದ್ರೆ ಹಾಕಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸೂಕ್ತ ಜಾಗ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಈ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕು, ಬ್ಲಡ್ ಸೆಂಟರು ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ RV ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ VR ದೇಶಪಾಂಡೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಏನು ಈ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸರ್ ಅವರು ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರು MRPLನ ಬಗ್ಗೆ. ಅವರು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಂತ್ರಿ, ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳುವಂತಿದ್ದೆ, ಅವರೇ ಮೊದಲು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು. 1995ರಲ್ಲಿ MRPL ಸಂಸ್ಥೆ 3 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಸ್ ರಿಫೈನರಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನ್ ಆಯಿತು. 95ರಲ್ಲಿ 93ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆಗ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸರ್ ಅವರು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ. ತುಂಬ ಒಪೋಸಿಷನ್ ಇತ್ತು, ಲೋಕಲ್ ಒಪೋಸಿಷನ್, ಫಿಶರ್ಮೆನ್ ಒಪೋಸಿಷನ್, ಸುಮಾರೆಲ್ಲ ಅಡೆತಡೆಗಳಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೆಗಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ರಿಫೈನರಿ ಇರೋದು ಇವತ್ತಿಗೂ, ಅದೇ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರಿಫೈನರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಆದರೆ ಅವರೊಂದು ತಗೊಂಡಂತಹ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ಗಳು, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಅವರು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಸರ್, ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ರಿಫೈನರಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ 3 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಸ್ ಟು 17 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಸ್ ರಿಫೈನರಿ. ಅದು ಇವತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಂಪನಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಾಮ್ನಗರದೆಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್, ಬಟ್ PSU ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ರಿಫೈನರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ರಿಫೈನರಿ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ತುಂಬ MRPL ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದೆ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸಾಹೇಬರು ಅದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿ ಆಗಿದೆ, ದಾಂಡೇಲಿಗೂ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಎಂಥ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುವಂತಿದ್ದೆ. ಅವರೇನು ನಮಗೆ MRPL ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ONGC ಸಂಸ್ಥೆ, ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 2013ರಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಇವತ್ತಿಗೆ ಅದನ್ನು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ನಮಗೆ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ, ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಖಾಲಿ ಅದರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಅದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ MRPL ಸಂಸ್ಥೆ ONGC ಸಂಸ್ಥೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ CSR ನಿಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದ್ಧತೆ, ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಲಾಭಾಂಶದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅದರ ಮುಖೇನ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ದಾಂಡೇಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ MCH ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಗೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಅನುದಾನ MRPL ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಅಲ್ಲದೆ MRPL ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸುಮಾರು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಸುಮಾರು ಈಗ ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರ್ MRPL ಸಂಸ್ಥೆ ಸುಮಾರು 400ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ, ಕುಂದಾಪುರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ಆಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸುಮಾರು 400 ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗಳನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೇಡಿ ಗೋಸನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬ ಓಲ್ಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಡಿಮಾಲಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಡವಿ ಹೊಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸುಮಾರು 200 ಬೆಡ್ ಇರ್ಬೋದಾ, ಸುಮಾರು 270 ಬೆಡ್ನ ಹೊಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು MRPL ಮತ್ತು ONGC ಸಂಸ್ಥೆ ಸುಮಾರು 30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕರಿಗೊಳಿಸಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಅದು ಲೇಡಿ ಗೋಶನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಟಾಪ್ ಗೈನಕಾಲಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ MRPL ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಂಡೋಸಲ್ಫಾನ್ ಪೀಡಿತರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಇಂದ ಪೀಡಿತರಾದ ಕೆಲವು 5,000 ಜನರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. MRPL ಇಂದಂತಲ್ಲ, ಸುಮಾರು ಕಾಸರಗೋಡು ಮತ್ತು ಸುಳ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಹೊನ್ನಾವರ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ 5 ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾವು MRPL CSR ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಹೊಸ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ನೀಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಅದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಅಮೂಲ್ಯ ಜೀವಕಣ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಅಂಗಾಂಗ ಹೋದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ರೋಗ ಬಂದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಮದ್ದು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ದ ರಕ್ತವನ್ನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದೆ ಅದರದ್ದು ಅಂಥವರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ತುಂಬ उत्तम कार्य है. हमारे जनप्रिय शासक श्री RV देशपांडे जी यहाँ पर आए हैं. मैं यहाँ दांडेली में 2015 में आया था और आज जब मैं देखता हूँ दांडेली में इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है. ये सारा का सारा जो हॉस्पिटल का अगर आप ये देखें कि पीछे ये सारा पिछले 10 साल 15 साल के अंदर बना है और इसका पूरा श्रेय हमारे देशपांडे साहब को जाता है. दांडेली में आज इतनी अच्छी फैसिलिटी क्रिएट किया है जो मैं कंपेयर कर रहा था कि हलियाल से भी बेटर. आज हलियाल में ब्लड बैंक नहीं है, दांडेली में ब्लड बैंक ये लेके आए हैं. मतलब जो जनरल सोसाइटी के लिए, जनरल पब्लिक के लिए जो हेल्प हो सकती है ये कहाँ से कैसे करते हैं ये यही जाने, पर ये बहुत करते हैं हमारे लिए. मेरा ऐसा मानना है कि ये ऐसे ही हमारे को सहयोग देते रहे दांडेली की जनता को. आज MRPL का कंट्रीब्यूशन यहाँ लेके आए हैं CSR में, आज ब्लड बैंक खुला है. ऐसे बहुत सारे काम देशपांडे साहब करते हैं और सरकार की भी जो बहुत सारी स्कीम्स हैं उसके तहत हम लोगों को फ़ायदा होता है. जो आज इम्प्रूवमेंट हम देख रहे हैं दांडेली में, ये केवल एक ही आदमी को क्रेडिट जाती है, वो देशपांडे जी को है. तो हमारी ये परम पिता परमेश्वर से यही कामना है कि साहब का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, हमको मार्गदर्शित करते रहे और हम लोगों की सबकी सेहत का जो इनको चिंता रहता है वो कंटिन्यूसली बना रहे. ऐसे ही मेरी भी पर्सनल मतलब रिक्वेस्ट है और आप लोगों की सभी की तरफ से है. कंपनी का जहाँ तक है वेस्ट कोस्ट की तरफ से जो हम लोग कर सकते हैं समय समय पे करते हैं. आप लोगों को मालूम होगा कि कोविड के टाइम पे जो एक बहुत बड़ा
संकट था, साहब के मार्गदर्शन के कारण फिर हम लोग ने उस टाइम पे जब प्लांट भी बंद था तो भी हम लोगों ने 1 करोड़ रुपए के ऊपर का आज ऑक्सीजन प्लांट लगाया था। ये देशपांडे साहब ही ने ही हमारे चेयरमैन साहब से बात करके कन्विंस किया। ये सारी क्रेडिट इन्हीं को जाती है, क्योंकि उस टाइम पे जब बंद प्लांट में कौन आदमी काम करेगा, लेकिन इन्होंने कन्विंस किया। तो ये सारी चीज़ें जो भी मैं देखता हूँ कि आज इतने रोड और इतना हॉस्पिटल, ये इंफ्रास्ट्रक्चर और जो चीज़ें हो रही है, ये इनके पूरे के पूरे जो मार्गदर्शन और पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन, इन्वॉल्वमेंट जो रहता है ना, जो चिंता है आपको दांडेली की, तो ये बहुत सराहनीय है। धन्यवाद। ರಾಜೇಂದ್ರ ಜೈನ್ ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ದಾಂಡೇಲಿ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಚಿಕ್ಕದಾದ ಸನ್ಮಾನ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಾಹೇಬರು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. जी नमस्ते। दांडेली के इतिहास में आपके द्वारा, आपके कार्यकाल में होने वाला ये स्वर्णीय दिन है। सर जी, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे कि इतना बड़ा और इतना अच्छा कार्य आपके द्वारा हुआ सर, इसके लिए पूरे दांडेली के हर एक निवासी की तरफ से और जितने भी आसपास के लोग हैं उन सभी की तरफ से आपको हम विशेष धन्यवाद देते हैं, और हमारी टीम की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सर जी, आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे सर जी? दांडेली ये बढ़ती हुई नगरी है, यहाँ इंडस्ट्री उतनी नहीं है, तो टूरिज्म बढ़ रहा है सर। देश विदेश से लोग आ रहे हैं। सर। तो मैंने सोचा कि यहाँ एक हॉस्पिटल तो हो गया है सर, मदर केयर हॉस्पिटल भी हो गया, तो मैंने सोचा कि एक ब्लड बैंक अगर इधर होगी तो सिर्फ दांडेली को नहीं, सराउंडिंग एरिया को भी उसका उपयोग होगा। सही बात सर। उसलिए हमने 2013 से इसके बारे में हम कोशिश कर रहे हैं। हमारी जी ONGC कंपनी है, MRPL कंपनी है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने 1 करोड़ रुपए दिया ब्लड बैंक के लिए 1 करोड़ CSR में। और थोड़ा देरी हुई जो टेक्निकल रीजंस के बाहर, और ये ब्लड सेंटर जो होता है वो भी फिलहाल केयरफुल डील करना पड़ता है। सही बात। तो सरकार भी सोच समझ के इसमें पाँव उठाती है। सही बात। कदम उठाती है। तो अभी सब गवर्नमेंट से ऑर्डर आए हैं, इसलिए आज दांडेली में एक शुभ कार्यक्रम का जो लोगों को सबको उसका उपयोग होगा। मैं एक ही दांडेली हो, हलियाल हो या कोई भी हो, लोगों से विनती करता हूँ जितना रक्तदान लोगों को करने को आता है, सही बात, उतना वो करे। सही बात। ये प्यार मोहब्बत से, किस पर प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं है, क्योंकि ये जरूर है ब्लड बैंक होने के बाद ब्लड रहना चाहिए। हाँ, ब्लड रहना तो ब्लड तो किसी को देंगे तभी आएगा। दान देना चाहिए ना, देना चाहिए। तो उसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि दांडेली के लोग बहुत प्रोग्रेसिव है, अच्छे हैं, और मेरे पॉलिटिकल करियर में भी दांडेली के लोगों से बहुत मेरे को बड़ी मदद मिली है। सब आपसे प्रेम करते हैं, आप दांडेली से प्रेम करते हैं। अच्छा है, उससे जितना भी हो सकता है दांडेली में काम करना अगर हमारा दिल है, उस तरफ से हम पाँव डाल रहे हैं। ये आपके कार्यकाल में और इतना भव्य और ये ऐतिहासिक दिन होगा सर जी, और मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ आपको कि इतनी बड़ी उपलब्धि है सर। इसके लिए फिर एक बार हर एक दांडेली निवासी और आसपास के निवासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। कल हमने आपसे जो सवाल
पूछा था उसका सही जवाब है जोसेफ एस्पेडिन, इंग्लैंड से थे। कमेंट्स में जवाब देने वाले हैं विल्सन पेरामुला, सैफ अली शेख, बालचंद्र कंभार, हर्ष उपाध्याय, वासुदेव जितूरी, देवानंद सड़ेकर, घनश्याम नीलेश पाटिल, काव्या बी ठाकुर, नितिन कुमार हलसेगी, प्रशांत देवक्की, सागर गजिनकर, विजय कुमार बैला, असलम नवाब, मुख्तियार सांबराणी, मंजुनाथ पाटिल, दीपक कंगरालकर, जितेंद्र सोनी, महेश हुटगी, लतीफा शेख, अभिषेक यादव यूपी प्रयागराज से, अभिषेक काले, योगेश कदम और शीला विनायक। आज का सवाल, रक्त ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अंत तक हमसे जुड़े रहने के लिए सभी दर्शकों का धन्यवाद। कल फिर मुलाकात होगी हमारे इसी चैनल पारिक प्रेजेंटेशन पर।